के बारे में बहुत कुछ बात किया गया है और एक बहुत ही पुख्ता फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है सर, बनाने एक मिनट रोकना चाहूंगा। स्मृति ईरानी कुछ कह रही है जरा। न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। मैम, ये सीपी भी अब नेताओं की तरह बयानबाजी कर रहे हैं और दूसरा ये कि बार-बार मेरा मीडिया को प्रश्न टारगेट उठता किया जा है, रहा है। मेरा अब क्या डॉक्टर के बाद मीडिया कर्मी खतरे में? मीडिया ही नहीं, अगर सोशल मीडिया पर कोई इस मुद्दे पर सवाल उठा रहा है तो कोलकाता पुलिस, ये मेरे ध्यान में आया है, उनको नोटिस दे रही है। मीडिया, लड़कियां, महिलाएं, इनके ऊपर अत्याचार करने के बजाय मॉब को कंट्रोल किया जाए, रेपिस्ट अगर और हैं तो उनको ढूंढा जाए। मैम, एक सवाल है, केंद्रीय मंत्री और बंगाल के प्रेसिडेंट सुकांता मजूमदार प्रोटेस्ट में बैठे थे, उनको हिरासत में ले लिया गया, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रैली निकालती है। मैं दोबारा कह रही हूं, कीप योर फोकस ऑन द विक्टिम। We are here today for a girl who was brutalized because she went to work in a hospital hoping to save lives. My question is again, a young woman after hours of duty trying to save lives in a hospital wanted to just rest. She was raped, her legs broken, her nails taken out, her chest beaten, injury on her belly, her eyes also injured, bleeding from the vagina, bleeding from her eyes, injury on the lips. All these reports are out in the media. Did she not scream? Of course she would have. Was there nobody who heard her? And was it possible for one man to do this? Why is it that a rapist felt safe enough after raping a woman to go back, and people who came out to protest so that a woman gets justice are attacked by a mob? Ma'am, Chief Minister gives deadline to CBI to conclude the investigation by Sunday. Does the Chief Minister of Bengal want to ensure that investigations are not completed in totality? Why is she in a hurry, knowing that these questions are still unanswered? Why did not the Kolkata police bring to justice the officer who has informed the parents that the girl committed suicide? Under whose instruction was that call made? Why is it that a petition says that there was 150 mg of semen found in the girl's body? And why is it that no action, no statement has come out which in some way gives people of our country an understanding as to who the perpetrator or perpetrators of the crime are? Can you imagine a barbaric, brutal act like rape takes place on a floor? Who in the hospital administration thought that renovation should be done? How did that hospital staff know that that area which they hoped to get renovated was also not a part of the crime scene? And is this the first time that this police officer, commissioner of police, has been found to be in the middle of a case where many questions are unanswered? I will highlight here that this is the same commissioner of police who has been accused of not allowing victims of violence to meet the governor. This is the same police officer against whom a lawyer in the High Court said that he has deliberately fudged an investigation in another gang rape case wherein the rapists were let go. Why would then the state government not ensure that these questions are answered? मैम, 14 तारीख रात को जब पूरा बंगाल इसमें शामिल था, मोमबत्ती मिছিল किया, बहुत ने शोक भी मनाया, तभी देखा गया कि मॉब का अटैक हुआ। जब मॉब का अटैक हो रहा था आरजीकर में, इतना दिन तक जो पुलिस था, 40 मिनट के लिए कोई पुलिस ही नहीं था उधर। और मैंने कुछ चैनल्स के ऊपर
हॉस्पिटल के कर्मियों का और कुछ डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स का स्टेटमेंट देखा, जिसमें वो क्लेम करते हैं कि पुलिस उनसे गुजारिश कर रही थी कि आप हमको हॉस्पिटल में कहीं छुपाइए। इस घटना का भी क्या मीडिया को पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मिला है? जब पुलिस ही मॉब से छुप रही है, जब पुलिस ही मॉब को इकट्ठा होने दे रही है, तो जनता प्रोटेक्शन किससे मांगे? मैम, जब मॉब अटैक हुआ था उस वक्त रात को 2:30 बजे मैं वहीं पर रिपोर्टिंग कर रही थी। मैंने सब कुछ अपने मोबाइल से शूट किया था रिपब्लिक भारत के लिए। मैंने वहां पर देखा कि पूरी मॉब जो है उनके हाथ में लाठियां थी, ईंट के पत्थर थे मोटे मोटे, और वो पूरी तरह से अस्पताल में घुसने का प्रयास कर रहे थे। ये जानकारी मिली कि ताला पुलिस स्टेशन को पहले से बताया गया था 10 बजे कि मॉब अटैक होने वाला है। फिर पुलिस की फोर्सेस उतनी तैनात क्यों नहीं थी वहां पर? मैं फिर से कहना चाहती हूँ, मैं और ऐड कर देता हूँ कि जो मॉब आए थे उनके पास इंफॉर्मेशन था कि थर्ड फ्लोर पर Yes. उनको मैम, ये उनको बोला गया था मालूम पड़ा 3 ताला कि तक 3 जाना। ताला, जो पर बंगाल वो में बोलते हैं 4 confuse हो ताला, गए। उनको लोगों के पास इंफॉर्मेशन था 3 तीन ताला। ताला। सीपी ने आज ये भी कहा कि हम असिस्टमेंट करने में फेलियर रहे हैं। अगर सीपी ने अपनी फेलियर एडमिट की है तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? मॉब को किसने बोला कि तीसरी मंजिल पर जाकर तोड़फोड़ करनी है? तीसरी मंजिल में क्राइम सीन के अलावा ऐसा क्या था जिसे तोड़ने का, डिस्ट्रॉय करने का मॉब को आदेश था? अगर मीडिया की रिपोर्ट्स सही हैं, अगर वीडियोग्राफिक एविडेंस उपलब्ध है कि लोग लाठियां, पत्थर लेकर उस अस्पताल में घुसने का प्रयास कर रहे थे, तो ये कैसी कानून व्यवस्था है जिसमें लाठियां इकट्ठे करने को, पत्थर इकट्ठा करने को एक मॉब को परमिशन मिलती है? तो जो सवाल मैंने अपनी इस डिबेट में उठाए वही सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि स्मृति ईरानी से भी पूछे गए हैं, चाहे वो भीड़ का पहुंचना हो, फिर भीड़ के ऊपर शक हो, या फिर एक से ज़्यादा लोगों का इस केस में इन्वॉल्वमेंट। ये सारे सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए, जिसमें स्मृति ईरानी कह रही हैं कि इन सब सवालों के जवाब अब सीबीआई की जांच से ही सामने आएंगे। हालांकि वो लगातार पश्चिम बंगाल सरकार को भी कटघरे में खड़ा करती हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, आप सभी का शुक्रिया। देश का सवाल में इतना ही। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ